जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी सोनिया आंटी। Can't hear you aunty. Still can't hear you aunty. Sangaji, there is some technical issue. Please cooperate. Aunty would be joining soon. Sangaji, aunty has just logged off and she would be logging in again. So please bear with us. Jai Guruji aunty. I'm getting jitters now. It's like last time auntie mentioned that the voice was going and the mic was getting muted. Finally. Jai Guruji, auntie. जय गुरु जी। कहाँ से है? Welcome, auntie. Sit here. Jai Guru ji, am I audible, Shilpi? Yes, 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 auntie. You know, I've logged in from my son's phone. I don't know what happened at the 11th hour. Seriously, you know. There is a Oh my God. presence. Yeah. Seriously, I don't know. It always happens, you know. Anyway, you know, I was having Cobby wobbles and whatnot. Collie wobbles, actually. Okay, संगत जी बहुत बहुत बधाई हो लोहड़ी के त्योहार की. Warmest greetings to all, and may we all kill all the negativity of our lives in the fire of Lohri, and we should pray for each other's good health, positivity, and spiritual upliftment. And seriously, I'm still shivering. I don't know what happened actually. It's beyond me. तो अभी हमने ये वीडियो देखा
So I think this video really gave goosebumps, and you know, सब कुछ ही whatever we had read, so it says all. वीडियो में बहुत बहुत अच्छी बात कही कौशिक जी ने कि God helps those who wants to be helped. So God helps those who wants to be helped. So ask God to help you and keep smiling and be brave. That is what always Wispy also used to say. Beautiful thing कि जो अपनी मदद खुद करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, तो ईश्वर जरूर उनकी मदद करने आते हैं. और ये भी हमें उन्होंने बताया कौशिक जी ने, no matter how misery comes in your life, just keep your face up, keep your chin up, keep your chin up and keep smiling and help others, so which will heal your problem, and at the same time try to keep yourself occupied as well, so you won't feel that miserable. And then she says, maybe it is difficult, but you can do it. Don't say try it, just make up your mind to do it. So this is what Kaushik ji explained to everyone. It was a great, great, great message. Last में उन्होंने ये भी बोला कि keep your pride in your pocket. ये बहुत बड़ी बात कही, keep your pride in your pocket. क्योंकि कहते हैं सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, पर जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से. So ये शुरुआत करेंगे आज की हम. थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, day one में जो मैंने कहा था कि what happened with my daughter when she was in a room, she heard the voice कि इन्नू के किताब बंद कर दे. तो कई बारी थोड़े से मुझे मैसेज आए थे संगत जी से, नहीं ये गुरुजी की आवाज नहीं थी, गुरुजी ने नहीं कहा था, गुरुजी ने ही इनफैक्ट ये किताब हमें शुरू करवाई है. energies were playing with us, and they didn't want that we should initiate this book, and they didn't want that people should know, Sangha should know about the spirit world, and God. So that is why she heard the voice and she came and she told me, हम इन चीजों को lightly ही लेते हैं because Guruji has really kept me among these things, and तो आदत पड़ गई है. So I told her not to worry, that's okay, let it be, that's okay. और उसके बाद जो हम आज शुरू करेंगे, that is the real laws of God, the real laws of God. तो गुरु जी की आज्ञा लेते हैं और शुरू करते हैं. My dearest mom and dad, this is Wispy and Ratu speaking from the spirit world to make people on earth understand through you how to follow the right path, God Almighty's own path. तो विस्पी एंड रतु क्या कहते हैं, मम्मी डैडी, हम वो जो जीव आत्मा का जगत है वहां से बात कर रहे हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं आपके द्वारा. आपको बहुत बड़ा माध्यम चुना है ईश्वर ने कि सच्चा सुच्चा रास्ता कौन सा है, ईश्वर का रास्ता कौन सा है. So my dearest mom, write this book for us and let your world know about the spirit world. वो कहते हैं मामा आपको ये बुक लिखनी पड़ेगी, लिखवाने वाले तो हम ही हैं, हमारे द्वारा आप किताब लिखेंगे ताकि ये सारी दुनिया को पता चले कि जीव आत्मा जगत स्पिरिट वर्ल्ड क्या है. So my dearest mom, write this book for us and let your world know about the spirit world, about the laws and rules of God Almighty, which are misunderstood by people on earth, and about the realms in the spirit world. ताकि दुनिया को पता चले स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में और नियम के बारे में, कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स हैं ईश्वर के जो कि गलत समझे जा रहे हैं. ये पृथ्वीवासी हैं वो उनको सही रूल्स तो पता ही नहीं है, और उनको हम बताना चाहते हैं किस तरह के रेल्म्स लोक हैं स्पिरिट वर्ल्ड में. आगे बोलते हैं, it is quite wrong to believe everything that your priest tells you and what great philosophers preach about the real justice of our God Almighty. वो कहते हैं ये बहुत गलत बात होगी अगर आप विश्वास करेंगे, क्या आपका पंडित, क्या पुरोहित जो भी आपको बोलता है, जो फिलोसफर्स होते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, अगर आप ब्लाइंडली उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता रियल जस्टिस क्या है गॉड ऑलमाइटी के. They don't know all. You will come to know they don't know all. They or you
will come to know all only when you leave from your earth plane and go to the spirit plane. कहते उनको भी और आपको भी तभी पता चलेगा जब ये दुनिया आप छोड़ेंगे और स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचेंगे. But we people are very lucky. हमें जीते जी वो सारा कुछ समझा रहे हैं ताकि जब स्पिरिट वर्ल्ड में हम पहुंचे तो हम अचंभित ना हुए, वहां पहुंच के ऐसे कुछ शॉक में ना चले जाएं, और यहाँ रहते हुए भी हम अपनी जीवन अच्छी तरीके से जिए अगर हमें वो सारे लॉस पता होंगे. Well, it will not take just a few pages or a few chapters, not even a few books to explain to you what real justice is. कहते हैं कुछ पन्ने या कुछ अध्याय, कुछ किताबें ही काफी नहीं है इन लॉस को जानने के लिए. It will take you ages to learn what a God truly wants from us. कहते हैं आपको युग लग जाएंगे जानने के लिए कि वाकई में ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं. तो तभी तो हमें गुरुजी शब्द सुनवाते हैं ना, वो माथे तिलक हथमाला बाना लोकन राम खिलो ना जाना. लोका ने अपने ही लॉज बनाए हुए ने, they don't know what God wants from us. इसीलिए गुरुजी आए हमें बताने के लिए ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं. Basically he just wants us to lead a very very simple life. हम अपने आप को रीअलाइन करें, रीलर्न करें, रीएडजस्ट करें, और यही सिखाने के लिए गुरुजी आए हैं कि ये तो जानो कि ईश्वर क्या चाहते हैं. गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं उन्होंने बहुत सरल भाषा में हमें समझा भी दिया. बंदे बन जाओ, अच्छे इंसान बनो, एक दूसरे की कदर करो, प्यार नाल रहो, चुस्तियां चलाकियां चमचागिरियां चोरियां ये सब छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा. So इसमें भी यही लिखा है, it will take you ages to learn what a God truly wants from us. So our efforts to explain this to you may not prove quite satisfactory. कहते हैं हम जितना भी अपना एफर्ट कर लें शायद वो पर्याप्त ना हो आपको समझाने के लिए. But we from the spirit world want our dear ones and all earth people to know what the truth is. कहते हैं पर हम चाहते हैं हमारे ये जो भी इस जगत के लोग हैं, हमारे जो प्रियजन हैं, हम चाहते हैं ये जो पृथ्वीवासी हैं हम इनको सच्चाइयां बता दें. So I'll read again. But we from the spirit world want our dear ones and all earth people to know what the truth is, to know that you're making many mistakes just because of some silly notions or because of what some man who is supposed to be holy and philosophical tells you. कहते आखिर में आप गलतियां कर क्यों रहे हैं. आपकी अपनी बेमतलब की धारणाएं आपने लोगों ने खुद बनाई हुई है, क्योंकि एक फलाना कोई होली बंदा है जो आपकी नजर में पवित्र है, कोई फिलोसफर है, आप उसकी बातों में आके यू बिकम सो गलिबल और जो वो कहते हैं आप मान जाते हैं. बट समटाइम्स व्हाट दे से इज क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ आवर गॉड ऑलमाइटीज रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये सही बात है. कई बार क्या होता है हमें कोई इस तरह के लोग मिल जाते हैं, कोई वो नजर में तो बहुत you'll find them quite pious और philosophical, but आपको पता ही नहीं है, क्या पता वो आपको कुछ उल्टी चीज बता रहे हो, quite opposite of our God Almighty's real rules and regulations. कहते हैं ना किरदार पहले अपने बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर. अरे पहले अपने आप को देखो, तो किसी को क्या दिखा रहे हो. सिर्फ पायस दिखने से कुछ नहीं होता है, जो असल में होता है ना नियत साफ रखनी बहुत जरूरी है. तभी कहते हैं किरदार पहले अपने बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर. इसी करके बिस्पियन रतु भी बोलते हैं sometimes what they say is quite the opposite of our God Almighty's real rules and regulations. आगे पढ़ते हैं. At this time on earth when evil and bad souls are on top and good souls are suffering, we feel this book will explain to you why, yes, why bad souls seem to be succeed and good souls suffer. कहते हैं हमें पता है जो अर्थ में है ना, जो ये जो इविल रूहें हैं, दुष्ट और बुरी आत्माएं हैं, इनका बहुत बोलबाला है, और जो अच्छी आत्माएं हैं ना वो ही सफर करती हैं ज्यादा. तो कहते हैं इसी करके हम किताब लिखवा रहे हैं ताकि आपको पता चले ऐसा क्यों होता है. Why? Yes, why? Bad souls seem to succeed and good souls suffer.
Good souls want to blame our dearest God Almighty for being unjust towards them. So read on, my dears, and you will find many answers. कहते हैं इसलिए तो आपको बता रहे हैं, जो अच्छी आत्मा है ना, वो हमेशा ब्लेम करती हैं ईश्वर कि रब ने मेरे नाल इस तरह क्यों किया, ये ईश्वर को ही ब्लेम करते हैं और वो they feel that God has been unjust towards them. So read on, my dears, and you will find many answers. तो इसे करके ना गुरुजी भी हमें शब्द बानी सुनाते हैं ताकि हम असलियत जान सकें, और वो व्याख्या वाले शब्द तो गुरुजी बहुत सुनवाते होते थे हमें। शब्द बानी को ध्यान से गहराई से सुनेंगे तो सब ज्ञात होता है। वह स्वयं भी बहुत ध्यान से सुनते थे। गुरुजी would get totally engrossed। जब वो खुद इतने ध्यान से सुनते थे भगवान होने के बावजूद भी, तो हमें तो फिर बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। शब्द के जरिए वो हमें सच्चे सुचे रास्ते से जोड़ते हैं, और ईश्वर यही चाहता है ना कि हम सच्चे सुचे रास्ते पर चलें। Gurbani is the true nectar. It contains the blessings of Guru. It helps to keep us on the true path. It purifies us and it dispels the negativity and heals us। हमारे कर्म काटने का भी तरीका है। गुरुजी भी कहते से कर्म भी कटदे है कि गुरबानी दे द्वारा, जैसे महाशिव पुराण पढ़ने से भी कर्म कटते हैं। सो ये इसी करके जब हम ये गुरबानी भी सुनते हैं तो हमें धीरे धीरे जवाब मिलते हैं, और जो लोग ईश्वर पे दोष लगाते हैं ना, फिर वो उस तरह के दोष नहीं लगाते, क्योंकि अंदर से प्योरीफाई होने शुरू हो जाते हैं, मैल उतरती है उनके अंदर से, उनको एनलायरनमेंट मिल जाती है। और गुरुजी ने बड़े सरल भाव से वो शब्द लगाए। कभी भी सत्संग पे जाने का मौका होता है तो आई तो ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज आप व्याख्या वाले जरूर लगाया कीजिए। वो क्या होता है ना, कई बारी जैसे लोग करते हैं, कभी घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो वो अपनी सी लिस्ट बना लेते हैं, बट दे डोंट रियलाइज अगर एक भी आपका व्याख्या वाला शब्द है ना, आपको नहीं पता वो कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। गुरुजी ने बहुत शब्द लगवाने, सांसों की माला जैसे अंदर जाना, या कबीर जी के दोहे बहुत लगवाते थे, या चरणादि मौज, वो इतने ज्यादा डिटेल में उसके द्वारा हमें सिखाते थे। वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग क्या होता है ना कि यही सोचते हैं कि नहीं, इस जन्म में मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तो वो आज़माइशों का समय तो आज़माइशें तो आती हैं ज़िंदगी में, पर यही हमारे मुख से निकलना चाहिए, कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आज़माइशों के बाद। तो ये पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, होप कभी नहीं खोनी चाहिए लाइफ में। So next we're gonna read improvement through self analysis। अब सेल्फ एनालिसिस क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्म विश्लेषण। सेल्फ एनालिसिस एक्चुअली करना बहुत बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं। Bad souls can be helped by God Almighty if the bad soul so desires। कहते हैं कोई भी बुरी आत्मा है, अगर वो सुधरना चाहती है तो ईश्वर मदद जरूर करते हैं। Bad souls must have the inner instinct, अंदर से वो जरूर होना चाहिए inner instinct, and may pray to God Almighty to change them। So इसका क्या मतलब है? It's never too late। It's never too late। जब आप अपने आप को आपके मन में है कि मुझे बदलना है, definitely God will help you, Guruji will help you, पर वो sincerity से आना चाहिए। Bad souls must have the inner instinct and may pray to God Almighty to change them। God Almighty will definitely help them। It is entirely in each soul's hands to be good or bad। तो चॉइस तो दी है भगवान ने, फ्री विल तो हमें दी है, अभी हमारे ऊपर है हम अच्छा बनना चाहते हैं कि बुरा बनना चाहते हैं। फ्री विल। गुरुजी भी कहते सी मैं किसी तक कर्मा च इंटरफेयर नहीं करता हैगा, वो रास्ता दिखाते हैं, शब्द बानी सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, किस लिए? ताकि हम अच्छे रास्ते चल सके। पर ये आत्मा के ऊपर ही होता है, वो अच्छाई के रास्ते चलना चाहता है कि बुराई के रास्ते पर। इसी करके तो हम शब्द सुनते थे ना, सच्चे बादशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना सच्चे बादशाह। तो ये क्यों? उसमें सब कुछ है। दर तेरे सवाली जो आए, मुंह मंगिया मुरादा पावे। तो हम सारी उसमें वो याद आ रही हैं चीजें, कोई गुण ना पल्ले नरक ना मैनू चले, तर गए पापी नाम रट के, कई 84 नाम जप के, बिसर नहीं दातार बख्शो मेरे करतार। हो सकता है मेरे मुख से कुछ गलत भी उच्चारण हो जाए, बट मुझे माफ कीजिए।
पर यही है, यही तो मांगते हैं हम, बख्श खता, जैसे गुरु जी ने कहा ना, मैं बख्शनीता हया हैगा, तो हमें बख्शवा लेना चाहिए। इस अवेयरनेस का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। अगर हमें नहीं पता पिछले जन्मों के जो पाप किए हैं, बट ऑफ कोर्स इस जन्म में अगर हमें सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमारी आत्मा को पता है कहाँ हमने बुरे कर्म किए हैं, किसका दिल दुखाया या क्या किया है। इतना ठगियां, चोरियां, चमचागिरियां, चालाकियां सब छोड़ देना चाहिए अब। और जैसे कि आप लोहड़ी है, इन चीजों को लोहड़ी में दहन कर देना चाहिए। Those souls who are bad but want to change can be changed to good souls in no time. कहते हैं अगर कोई बुरी आत्मा है ना, कोई वक्त नहीं लगेगा। अगर आपके अंदर वो तीव्र इच्छा जाग उठी, नहीं मुझे अच्छा बनना है। On earth we have often heard you say confess and God will forgive you. God will forgive you. कहते हमने बहुत बारी सुना है ना, ये पृथ्वीवासियों को कि कन्फेशन करो, कन्फेशन करो, कन्फेस करो, ईश्वर आपको माफ कर देगा। कहते हैं वो बिल्कुल सच है, दिस इज ट्रू, बट यू मस्ट कन्फेस योर सिंस टू योरसेल्फ एंड नॉट टू प्रीस्ट। तो ये बहुत बड़ी बात कहते हैं बिल्कुल ये सही बात है। गुरु जी कहते थे ना, बख्शवा लो मेरे हुंदे अपने कर्म, बख्शवा लो मैं बख्शनी आया है गाय। सो जब गुरुजी किसी की बीमारियां भी ठीक करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो हमने कुछ पाप किए होंगे, उनके कुछ रेजिड्यूज हमारे साथ आए हैं, और वो ही हम क्या कह रहे हैं कि ऊपर की दुनिया से ठीक है, ये चीजें मैं अपने ऊपर लूंगा या लूंगी, पर क्या होता है इधर आके हम भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने जब किसी की चीज ठीक करते हैं ना, गुरुजी कहते मैं ताड़ा डॉक्टर नहीं लगा हैगा, जैसे बोलते थे मजाक में, मैं डॉक्टर नहीं लगा हैगा ताड़ा। तो वो क्या किया, उन्होंने बख्श दिया। तो बीमारियां ऐसे नहीं ठीक हो जाती किसी की, वो बख्श देते हैं। सो वही कहते हैं गुरु जी के होते इस अवेयरनेस का फायदा उठाना चाहिए। और ये भी है, अगर कन्फेस करना है, sit in front of your guru and confess. You don't have to confess to some priest or any Tom, Dick or Harry. आपको confession सबसे पहले अपने आप से करना है, और वो सेल्फ एनालिसिस ही है ना, one of the ways of confession, कि आप अपने आप से confess कर सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं आपको कोई जरूरत नहीं है कोई पंडित या कोई प्रीस्ट से। क्यों? They're going to give the reason. A priest has no power to forgive you. So very, blatantly they tell that प्रीस्ट के पास कोई पावर नहीं है आपको माफ करने के लिए। Who is that priest to forgive you? अरे वो कौन है आपको forgive करने के लिए? He may be more sinful than you are, so don't confess to a priest, confess to yourself. जैसे पहले भी ये बुलवाया था गुरुजी ने, किरदार पहले अपना बनाने की बात कर, फिर आईना किसी को दिखाने की बात कर। अरे हम कौन है किसी के सिंस को माफ करने वाले, या किसी को बता के? ऐसे नहीं होता है। ऊपर यही तो वो बता रहे हैं, ऊपर की दुनिया के लॉज बहुत डिफरेंट है। आप प्रीस्ट के सामने जाते हैं, आप फॉरगिवनेस मांगते हैं और आपको लगता है आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। अ प्रीस्ट हैज नो पावर टू फॉरगिव यू। हु इज द प्रीस्ट टू फॉरगिव यू? He may be more sinful than you are. So don't confess to a priest, confess to yourself. कहते हैं अपने आप को कन्फेस करो। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता, उसने शायद आपसे ज्यादा पाप किए हों। कहते हैं ना, कैसे ही आएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए हैं आंसू और मुस्कान। अरे कैसे पहचानोगे आप? कैसे ही आएगी अच्छे इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए हैं आंसू और मुस्कान। तो अपने पे भरोसा रखिए, सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस कीजिए। हाँ, मेरे से इस जिंदगी में, बिल्कुल एक्नॉलेज करो इस चीज को, मेरे से ये चीजें हुए हैं, पर वो बख्शनहार है, गुरुजी बहुत बड़े हैं, वो बख्श भी देते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे आपको वो अपने सिंस बताने की कि ये हो गया, क्योंकि माफी तो खुदा देगा ना, अहुरा माजदा हमारे गुरुजी देंगे। So who is the priest to forgive you? He may be more sinful than you are. So don't confess to a priest, confess to yourself. Tell yourself that you are bad. Ask God Almighty to help you, and you can be sure that He will. पहले तो ये अपनी गलती को मानो, हाँ भाई मेरे से ये गलतियां हुई हैं, फिर ईश्वर गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने वो सारा एक्नॉलेज कर लिया, आपने सेल्फ एनालिसिस किया, यहाँ मैं गलत हुआ हूँ। He will. You must be absolutely sincere. पर
ये जरूर होना चाहिए, आपका प्रयास सच्चा होना चाहिए, अंतरात्मा से होना चाहिए, नहीं कि दिखावे के लिए माफी मांग ली फिर चलो जी फिर उस पुठे रास्ते हम चल पड़े. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. यू मस्ट बी एब्सोल्युटली सिंसियर. आई रिपीट, एब्सोल्युटली. देखो ये दोबारा से स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, कहते हैं यू मस्ट बी एब्सोल्युटली सिंसियर. आई रिपीट, एब्सोल्युटली. इफ यू आस्क गॉड ऑलमाइटी हाफ हार्टेडली, इट विल नॉट हेल्प. तो कहते हैं हाफ हार्टेडली मांगोगे तो कुछ नहीं होगा, पूरे मन से करना होगा. But if you are completely sincere and positive that you need to change, let us assure you that he will help you change for the better in no time. बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात कही. कहते हैं हाफ हार्टेडली मांगोगे ना ऊपर ऊपर से तो फिर ईश्वर आपकी मदद नहीं करेंगे. पर अगर आपने सिंसेरिटी से, बिल्कुल अपने अंतर आत्मा से वो पुकार की कि हाँ गुरुजी, आई वांट टू चेंज, I want to rectify myself, I want to mend my ways, I don't want to tread on the path which I had been, I have done umpteen of wrong deeds, so Guruji, forgive me, I have been wrong so many times. So कहते हैं let us assure you that he will help you change for the better in no time. आप मदद मांगेंगे तो ईश्वर मदद जरूर करेगा. थोड़े स्टेप्स आगे लेंगे तो गुरुजी भी आपकी तरफ आएंगे. ऊपर ऊपर से दिखावा करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि गुरुजी को दिखावा नहीं पसंद. once I was sitting with गुरुजी और आरती चल रही थी, सत्संग में भी बुलवाते हैं गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं देख 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 कितना पखंड कर दिया पईया. तो क्या मतलब है इसका? हम बहुत आरती कर लें, बहुत प्लेट उठा लें, गोल गोल करके झुक झुक के, अंदर हमारे पता नहीं क्या चल रहा है, तो क्या गुरुजी को नहीं पता? सो इसलिए अंदर से पहले सिंसियरिटी से सिंसियर होना पड़ेगा. डोंट इंडल्ज इन हिपोक्रेसी. सो ये चीजें छोड़ के तो गुरुजी जरूर मदद करते हैं. तभी तो शब्द बानी सुनाते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ. उसके बाद हम पढ़ते हैं, now suppose a person thinks he is good, but in reality he is not. What about such souls? तो हमें वो उदाहरण देते हैं, कहते हैं ना एक इंसान है, वो सोचता है मैं ठीक हूं भाई, पर असल में तो वो है ही नहीं. तो फिर क्या होगा इन आत्माओं का? Many people think what they are doing is as per God's laws. बहुत सारी दुनिया है, वो अपने लॉज बना के बैठी हुई है. वो सोचते नहीं भाई जो हम कर रहे हैं हमें पता है, अभी हम बिल्कुल सच्चे सुचे रास्ते चल रहे हैं और हमें पता है कि भगवान का असली रास्ता क्या है. They never have an ounce of realization of how sinful they are. कहते हैं उनको जरा सा भी इस चीज का अंदाजा नहीं है वो कितने पापी हैं. How sinful they are. They will say, I believe in God, I read holy books, I pray every day, I go to the temple or church every day or every week, I give plenty in charity, I give food, clothing, and jobs to the poor and needy. What does anyone want? तो उनको अपने आप को वो बहुत बड़ा समझते हैं. भाई मैं तो भगवान को मानता हूँ, मेरे जैसा तो कोई आज तक ही नहीं है, मेरे जैसा तो कोई गुरुजी को मानने वाला ही कोई नहीं है. मैं तो सारी होली बुक्स पढ़ता हूँ, मैं तो रोज पाठ करता हूँ, मैं तो रोज चलिया करता हूँ, मैं रोज मंदिर भी जाता हूँ और मैं चैरिटी भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, खाना भी देता हूँ, कपड़े भी देता हूँ और जरूरतमंदों को नौकरी भी देता हूँ, मदद करता हूँ. Nobody can be the biggest philanthropist, like me. तो वो क्या बोलते हैं और उनको पूरा विश्वास है भाई मेरे लिए तो स्वर्ग के रास्ते खुले हैं, मेरा तो बस रास्ता तैयार है. Actually they live in fool's paradise. वो कहते हैं और वो सोचते हैं what more does anyone want? I'll surely go to heaven. Sorry to say, these poor souls think that heaven's door is wide open for them. वो कहते हैं क्या सोचते हैं कि इनके लिए वो भगवान उनका वो स्वर्ग का द्वार खोल के बैठे हैं. But they will never even reach the lowest ladder of heaven. कहते हैं lowest ladder भी नहीं पहुंच सकते, let alone heaven. क्या बात कर रहे हो आप? ये जो लोग सोचते हैं हम बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं, हम तो बड़ी मदद कर रहे हैं, मैं हर चीज में आ जाता है. कहते क्या सोचते हैं? अरे हेवन क्या, वो जो सीढ़ी है ना उसका लोएस्ट जो पॉइंट होता है स्टेप, वहां भी नहीं पहुंच सकते. इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर अ सोल ऑन अर्थ टू अंडरस्टैंड दिस, बट इट इज ट्रू. दे विल नॉट इवन सी द लोएस्ट स्टेप ऑफ हेवन. तो देखिए ये बहुत बहुत
आंखें खोलने वाली बात है। बहुत हम भी ऐसी दुनिया में बहुत लोगों को मिलते हैं जिनको बहुत मान होता है और हमें वो ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई देंगे, भाई ये बंदा ये करता है वो करता है, बट वो ईश्वर को पता है क्या वो बंदा करता है। तभी बुल्ले शाह जी ने कहा ना, जे रब मिलदे नातियां धोतियां तब मिलदा डडुआ मच्छियां, जे रब मिलदा जंगल फिरिया तब मिलदा गावां बच्छियां, जे रब मिलदा विच मसीती तब मिलदा चम चिड़िकियां, बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा नीता जिन्हां दियां सच्चियां। तो ये जो फकीर है ना बुल्ले शाह, पढ़िए फरीद जी क्या लिखते हैं, इट जस्ट पियर्सेस इनसाइड योर सोल। तो यही तो है, बिल्कुल सही बताया है। कहते हैं सो लिसन केयरफुली विद एन ओपन माइंड। जब भी गुरुजी कहते थे खाने खोलो, व्हाई आर दे गोइंग टू अ प्लेस ऑफ वर्शिप एवरी डे, क्यों जाते हैं रोज? some go to show people around them that they are so pious that they think of God often। वो कहते हैं कई लोग तो बस शो ऑफ करने के लिए जाते हैं, दिखाने के लिए जाते हैं कि हमारे जैसा तो कोई भगवान को मानने वाला ही नहीं है, हमारे जैसा कोई होली पर्सन नहीं है, पायस नहीं है, और वो ईश्वर को एक पल नहीं भूलते। Ask yourself, can God Almighty ever be fooled? कहते अपने दिल से पूछो, क्या आप गुरु जी को, क्या आप भगवान को पागल बना सकते हो, छल कर सकते हो? You can fool your fellow man, but you will never be able to fool God Almighty। वो क्या बोलते हैं, कहते अपने आसपास बना लो जिसको भी बेवकूफ बनाना है, पागल बनाना है, बनाओ, go ahead, but you will never be able to fool God Almighty। ये बिल्कुल सही बात है कि आप ईश्वर को पागल नहीं बना सकते। जितना मर्जी दिखावा कर ले कि मैं बहुत मंत्र जाप करती हूँ, मैं बहुत सत्संग पे जाती हूँ, पर जब अपने दिल को टटोल के ही नहीं देखा तो क्या? अभी तो गुरुजी ने कहा मन मंदिर, घर मंदिर, पहले मन को तो मंदिर बनाओ। वो गुरुजी ने हमेशा कहना ना, अपना अंदर का भांडा साफ करो, तो यही तो है। वो मांझते भी है हमारा ये जो बर्तन है अंदर का, शब्द बानी के द्वारा, सत्संग सुना के। और ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम दुनिया में जाते हैं, मैल चढ़ जाती है, पर हमें कोशिशें अपनी जारी रखनी चाहिए। वो कोई फायदा नहीं है दिखावा करने के लिए बैठे। आप चाहे मंदिर ना भी जाएं, घर पे भी बैठ के अगर मन से याद करेंगे ना, तो वो बहुत ऊपर है। कहते फिर वो नास्तिक उस आस्तिक से ऊपर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज नास्तिक कहता ठीक है मैं रब नू नहीं मानता, नहीं मानता तो उस गल ते तो अड़िया है ना कि नहीं मानता, भाई ठीक है नहीं मानता। एक इंसान कहता मैं बहुत बड़ा आस्तिक हूं, आप ईश्वर को मान ही भी जा रहे हो, फिर भी आप ठगियां, चोरियां, चुगलियां, चमचागिरियां कर रहे हो, क्या फायदा? सो वो बार बार यही कहते हैं, यू कैन फूल योर फेलो मैन बट यू विल नेवर बी एबल टू फूल गॉड ऑलमाइटी। यू कॉल योरसेल्फ अ गॉड फेयरिंग पर्सन, If you really were a God-fearing person, would you ever try to fool God? कहते हैं आप अपने आप को बहुत कहते हो भी मैं तो ईश्वर से बहुत डरता हूं। अगर आप वाकई में ईश्वर से डरते होगे तो क्या आप इस तरह के कार्य करोगे, काम करोगे, ईश्वर को पागल बनाओगे? ईश्वर को पागल कोई नहीं बना सकता। हम अपने कर्म खराब करते हैं, अपने कर्म। और गुरु जी तो हमें शुरू से सिखाया है गॉड फियरिंग भी होने की जरूरत नहीं है, रब को डरना नहीं, जो डरना है तो अपने कर्मा को लो डरो, अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए। सो इस तरह से बहुत बहुत सीख दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं some go to a place of worship every day or every week to ask God for more money, more happiness and more success। वो ये है ना, बिजनेस करने जाते हैं, कहते हैं वही गुरुजी ने ताई था क्या, मंगो नहीं मन्नो। कहते कई लोग वर्शिप की जगह जाते हैं, कई बार हर हफ्ते या फिर जैसे भी जाते हैं, क्या करते हैं, बस मांगे मांगने, भगवान मुझे पैसा दे दो, मुझे खुशी दे दो, मुझे सफलता दे दो। व्हाट इज दिस? यू आर गोइंग देयर फॉर योर ओन सेल्फिश मोटिव। वो कहते हैं सुनो, तुम जाते हो तो कोई एहसान थोड़ी करो, अपने लिए जा रहे हो, अपनी मांगे लेके जा रहे हो, नॉट फॉर गॉड बट फॉर योरसेल्फ। ऐसी गुरुजी के साथ बैठी थी, गुरुजी ने कहा सानू कौन मिलन आंदा, ये तो सब अपनियां मंगा पूरियां करन आंदे ने। संगत तो मेरी मुट्ठी विच है, बाकी तो भीड़ है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, उनकी मुट्ठी वाली संगत बनना है हमने, भीड़ नहीं बनना। बाकी तो सब मांगे मांगने जाते हैं। देखो मंदिरों में ज्यादातर लोग ना मांगे ही मांगने जाते हैं, पर सत्संग में क्या होता है, उन मांगों का नाश होता है। इसलिए गुरुजी सत्संग सुनाते हैं।
ताकि जो भी हमारी डिजायर्स हैं उनको हम खत्म कर सकें। बिकॉज अगर कोई डिजायर रह गई ना, उसके लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। पर जो संतुष्टि से रहते हैं ना, तभी आप देखिए ये जो फकीर होते हैं, चाहे आप मीरा जी का जीवन देखिए, महारानी थी वो महलों की, पर वो दर दर अपने प्रभु के प्रेम में गाने गाती रही। चाहे आप रविदास जी का जीवन देखिए, उन्होंने गरीबी में जीवन निकाला। वो चमड़े को ऐसे धोते थे, बनाते थे जूते, और उनके जो ऐसे साथ में जिसमें चमड़ा धोते हैं ना, उसी में गंगा जी ने उनके पास आके उनको दर्शन दिए थे। तभी तो वहां से हुआ मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो गंगा मैया ने उनको स्वयं दर्शन दिए थे उधर। तो ये लोग ये जितने भी परफेक्ट मास्टर्स हुए हैं, ये उस तरह संतुष्टि से जीवन बिताते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर गुरुजी। इफ यू आस्क फॉर समथिंग, ही फुलफिल्स, देन व्हाट? ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। गुरुजी, मैं वही बताऊंगी जो मेरे समक्ष, जो मुझे मौका मिला, जो गुरुजी ने ऐसे ऐसे इतने गोल्डन वर्ड्स बताए। गुरुजी के अंदर कई बार तो मैं ज्यादा दे देना, एक बार देना मैं कहना चल दफा हो, मगरो लखे मगरो लथे इन्हों मैं दोबारा दी नहीं बुलाना। पर जिसको कुछ नहीं देते उसको सब कुछ दे देते हैं। सो वही है, हमने गुरुजी को किस चीज के लिए मांगना है? क्या हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमें बहुत सक्सेस मिले, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भर जाए? दुख तो कोई भी नहीं मांग सकता, वो तो कोई विरला ही होता है जो दुख मांगता है। सो वही बोल रहे हैं, some go to a place of worship every day or every week to ask God for more money, more happiness and more success. Hey, what is this? You're going there for your own selfish motive, not for God but for yourself. Can a selfish motive carry you to heaven? कहते हैं जो तुम्हारा स्वार्थ पूर्ण जो उद्देश्य है, क्या तुम्हें ये स्वर्ग ले जा सकता है? अरे नहीं, नहीं ले जा सकता। अगर सोचते हो तो फिर सोच ही जाओ, क्योंकि जब मरोगे तो पता चल ही जाएगा। यही तभी तो किताब लिखवाई भी, तुम्हारे लॉज डिफरेंट है, हमारे लॉज डिफरेंट हैं। आगे पढ़ते हैं। सपोज यू आर गिविंग अ ग्रेट डील टू चैरिटी, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाई। कहते कई बार होता है ना, आप बहुत दान पुण्य कर रहे हो, पहले पूछो तो सही अपने आप को भी, क्यों दे रहे हो? तुम्हारी मंशा क्या है? व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड गिविंग टू चैरिटी? योर मोटिव इज मोर इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं आपका जो मोटिव है ना, सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। If your motive is entirely selfless, for example, if your motive is only to help someone and it comes automatically, then of course God is pleased and he knows why you gave, which was not to impress him. तो ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। कहते सबसे पहले अगर तुम दान पुण्य करते हो ना, पहले तो ये देखो तुम किस वजह से कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारी मंशा क्या है। हमारा ये जो तुम्हारा मोटिव है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मोटिव सिर्फ ये ना, मतलब दिखावे के लिए नहीं है, सेल्फलेस है, आपका मोटिव सिर्फ ये है, नहीं मुझे इस इंसान की मदद करनी है, कहते फिर ईश्वर बहुत खुश होते हैं। He knows why you gave, which was not to impress him. कहते हैं उनको पता है कि आपने क्यों दिया, उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं दिया, ईश्वर को दिखावे के लिए नहीं दिया, आपने इसलिए दिया क्योंकि आपको अंदरूनी खुशी मिलती है। आपने सेल्फलेसली वो काम किया, कोई सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं किया। But suppose your motive is to get into heaven, to impress God Almighty by saying, if I give this to a poor person, God will send me to heaven. कहते हैं सिर्फ अगर आप इसके लिए दान पुण्य कर रहे हो ना कि नहीं मुझे तो स्वर्ग जाना है, you can be sure that God knows your motive and you won't be sent to heaven. कहते हैं ये मत भूलना, ईश्वर को सब पता है तुम दान पुण्य क्यों कर रहे हो, स्वर्ग का कोई दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। You can fool each other, you can try to fool yourself, but you can never fool God Almighty. तो ये जीवन में हमें रोज ये बात याद रखनी है, जिसको मर्जी पागल बना लो, अपने परिवार को बना लो, अपने आसपास के लोगों को बना लो, जहां भी काम करते हैं उनको बना लो, पर ये याद रखना ईश्वर को कोई पागल नहीं बना सकता, कोई पागल नहीं बना सकता। सो योर मोटिव बिहाइंड द चैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये जो मोटिव है ना, आगे से कभी भी दान पुण्य करेंगे तो ये दिमाग में जरूर आना चाहिए भी, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से मैं कर रहा हूं, दिखावे के लिए क्या, वाकई मैं किसी की मदद करना चाहता हूं। बी सिंसियर इन व्हाटएवर यू डू। आगे ये बहुत बेहतरीन लाइन आने वाली है। Even a tiny spark will bring you to heaven if you are sincere. कहते एक छोटी सी चीज भी आपने कर ली ना, अच्छी इंटेंशन से कर ली, शायद वो आपको हेवन ले जाए, सिंसेरिटी से अगर की। But even the largest of charities will take you to hell if you are selfish and try to fool God Almighty. कहते फिर जितना मर्जी बड़ा दान पुण्य कर दो, पर
अगर सेल्फिश होके किया ना, याद रखना ये आपको नरक के दरवाजे तक ही लेके जाएगा। सो दिस इज एंटायरली इन योर हैंड्स। तभी तो गुरुजी हमेशा कहते हैं गुप्त दान गुप्त पाठ, गुप्त दान महादान। तो यही है ना, गुरुजी ने क्या कहना, गुप्त पाठ गुप्त दान कीता करो, नाल बैठे नु पता भी ना चले कि तुसी पाठ करदे पए हो। क्या फायदा दिखा दिखा के मैंने इतने मंत्र जाप किए, मैंने इतना ये किया। अरे चुपचाप अपना बैठ के करो, सिंपल एज दैट। तो दान भी ऐसे ही है, क्या जरूरत है बताने की, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। वो बाइबल में भी लिखा है, when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing। हम जब कुछ भी करते हैं, हमने भगवान से बिजनेस नहीं करना। इट्स लाइक बार्टरिंग विद गॉड, यू नो। लव गॉड सेल्फलेसली, अनकंडीशनली, बिकॉज गॉड इज हंग्री फॉर सेल्फलेस लव। गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए, गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए। एंड of course God tests us from time to time, you know, by putting difficulties on our path to ensure that our love remains selfless। कई बार ऐसी मुश्किलें आती हैं, ईश्वर भी तो हमें देखता ना, क्या ये मेरा भगत मुझे सेल्फलेसली प्यार कर भी रहा है कि नहीं। And selfless love is all about giving and not expecting anything in return। But in this material world, love is based on give and take relationship। ये तो business है, just like bartering with God। तो वो business है, तो वो ही है। ये इसी करके गुरुजी किताब पढ़ा रहे हैं कि जान जाओ। किसी को बहुत ये जानने वाली बात है, जिसको मर्जी पागल बनाना, go ahead, go, make anybody fool, but you cannot fool God Almighty। और दूसरी चीज है, दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिंसेरिटी से करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं जस्टिस, जिसको हम कहते हैं न्याय। We are very thankful to God। वो कहते हैं we are very thankful to God that he needs no proof for our actions, right or wrong, and his justice is absolute। कहते हैं ईश्वर को कोई भी उस तरह का प्रूफ नहीं चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए हमारे एक्शंस का। उसका जो जस्टिस है ना, वो एब्सोल्यूट होता है। तभी कहते हैं ना, ईश्वर की न्याय की जो चक्की होती है ना, धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। तो ये याद रखना। कई बार होता है ना, हमें न्याय नहीं मिला, अरे वाकई में चलती धीमी है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। वो कहते हैं we are very thankful to God that he needs no proof for our actions, right or wrong, and his justice is absolute। In your world, most of the justice, even by the highest judges, may not always be correct, but God's justice is always right as he knows you inside out। तो जो दुनियावी जज है ना, चाहे वो आपको उस तरह से सही डिसीजन दे ना दें, वो फर्क नहीं पड़ता है। पर क्या फर्क पड़ता है, जो भगवान का जो न्याय मिलता है ना, वो हमेशा सही होता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बाहर की जानते हैं। If you try to hide something from your fellow man, it may stay hidden, but you cannot hide even a tiny bit from God Almighty। कहते ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों से कुछ भी छुपा ले, है ना, वो चलता है, पर ईश्वर से क्या हम कुछ छुपा सकते हैं। गुरुजी हमारे अंदर बाहर का जानते हैं, हमारी छोटी से छोटी चीज को भी जानते हैं। And his justice is always perfect। So because God is perfect, अगर भगवान perfect है तो उसका justice भी तो perfect ही होगा ना। If you believe this, you will never go wrong। देखो, जो इंसान है ना, सच्चे सुच्चे रास्ते पर चलता है, वो अपने ईश्वर पर बेइंतहा विश्वास रखता है, बहुत विश्वास रखता है, और इस करके फिर वो गलत रास्ते पर कभी नहीं चलता। कभी कहते हैं डू गुड, स्पीक गुड, एंड नेवर हार्म एनीवन। जैसे गुरुजी हमेशा ही कहते हैं ना, यही कि किसी दा माड़ा ना करो। जे किसी दा चंगा नहीं कर सकते तब माड़ा भी ना करो। और दूसरी चीज है, गुरुजी से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। से बाइबल में भी लिखा है, nothing in all creation is hidden from God's sight, everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account। कहते हैं जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाह करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। अरे जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाह करम है, ना तुम पर ज्यादा ना हम पर कम है। अरे वो सबका देख रहा है। वो he is seeing everybody's karma। सबके अकाउंट खुले हुए हैं। फिर कहते हैं वो
If you try to hide something from your fellow man, it may stay hidden, but you cannot hide even a tiny bit from God Almighty. And His justice is always perfect. If you believe this, you will never go wrong. You can be sure that this is absolutely true, and whatever you do or say is always recorded. देखिए, आप जो कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है. सो इंसान को बहुत ध्यान से कर्म करने चाहिए. वो लेखा जोखा सब नोट हो रहा है कहीं ना कहीं. So lead a moral, sincere and compassionate life. कहते हैं अच्छी जिंदगी जियो, सिंसेरिटी से जियो, दयावान बन जाओ. मॉरल्स, अपने एथिक्स मत छोड़ो, अपनी मोरालिटी मत छोड़ो. सो नीतिपूर्ण अपना जीवन जियो, सच्चा सुच्चा करुणामय जीवन जियो, गलत जीवन मत जियो, उठे कम मत करो. Try to improve yourself. You may think that no man on earth is perfect, so how could you be? कहते हैं अपने आप को सुधारो. और आप ये भी कहते हो कि कोई भी इंसान, जैसे हम कहते हैं इंसान तो पुतलियों का, अपना गलतियों का पुतला है, तो वो कहते हैं आप सोचते होंगे ना, कोई भी परफेक्ट तो है नहीं है, तो मैं कैसे हूँ. My dear readers, even we here on a higher plane on realm in the spirit world are not perfect, so how can you be? कहते हैं पर आपको ये भी बता दें, ये जो हम स्पिरिचुअल प्लेन्स में है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो भी जिस भी रेल में हम है ना, यहाँ भी कोई परफेक्ट नहीं है, तो आप कैसे हो सकते हो. जब हम यहाँ पर नहीं है तो आप कैसे हो सकते हो. पर हम ये तो सब कर सकते हैं ना, इम्प्रूव करते जाए. ये सिर्फ सोचें कि कोई परफेक्ट नहीं होता और ये कह के एक अपना ये बहाना सा मार के गलत काम करते जाएं, गलत कार्य करते जाएं. नो, it doesn't serve the purpose. अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. कल से आज बेहतर, आज से कल अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए. सो उसके बाद पढ़ते हैं, We are trying so hard to become perfect by gaining the good and discarding the bad. कहते हैं हम कैसे उस रास्ते में चल रहे हैं परफेक्शन के. हम अच्छी चीजों को अपनाते हैं और बुरी चीजों को डिस्कार्ड कर देते हैं. तो यही हमें जिंदगी में करना है. जहां से अच्छाइयां मिले वो ले लो, जहां से बुराइयां मिले उसको निकाल दो. इतनी विजडम तो ईश्वर ने दी है ना, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए. Every soul's goal should be self-improvement so that you can reach God Almighty, the perfect being, and it takes eons to reach Him. कहते हैं हर जो आत्मा का जो गोल, एक डेस्टिनेशन, वो क्या है? वो यही है, अपने आप को इम्प्रूव करें. सेल्फ एनालिसिस एक रास्ता हमें बताया है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. तभी हम ईश्वर के चरणों में पहुंच सकते हैं. अरे इट टेक्स इयॉन्स टू रीच हिम. ये इतना सौखा नहीं है, बहुत टाइम लगता है. तभी तो हमें शब्द सुना, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे. तो इतने जन्मों से जब हम बिछड़े हुए और फाइनली जब गुरुजी के चरणों के साथ हम लग गए हैं, वो हमें गुरुजी ने अपना लिया, तो उसका फायदा उठाना चाहिए. हमें उस सच्चे सुच्चे रास्ते पर चलना चाहिए. सो इन योर लाइफ try very hard to do good, speak good and never harm your fellow man. अच्छा बोलो, अच्छा करो, किसी का माड़ा मत करो. यही तो गुरुजी सिखाते हैं. No ABC. सब कुछ उसी में है. ABC में क्या एलिगेशंस, क्या अब्यूज करना, क्या बैकबाइटिंग करना, क्या बिकरिंग करना, क्या कंप्लेन करना, क्या क्रिटिसाइज करना. ABC में से बहुत कुछ निकल जाता है. तो वही है, डू गुड, स्पीक गुड एंड नेवर हार्म योर फेलो मैन. नेवर बी अनकाइंड. अरे अनकाइंड मत बनो, दयावान बनो. एंड ट्राई वेरी हार्ड नॉट टू बी अ हिपोक्रेट. दोगले मत बनो, बिल्कुल दोगले मत करो, दोगले मत बनो, डबल फेस मत बनो. You can achieve this if you want to, but the genuine desire should be there. कहते हैं तुम ये अचीव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर एक अच्छी इच्छा आ गई ना. शब्द बानी इसलिए हमें सुनाए जाते हैं ताकि हमारे अंदर वो इच्छा जागृत हो. हम क्यों रोते हैं? हम तभी रोते हैं ना, शब्द बानी सुन के मन की मैल उतरती है. आत्मा को पता चल जाता है यार मेरी रूह तो पाक है, लेकिन कर्मों का बोझ उठाया होता ना आत्मा ने, तो आत्मा रोती है कि मेरा सच्चा घर आ गया. इट्स माय होम, इट्स माय रियल होम. तो गुरुजी बेसिकली हमें शब्द बानी के द्वारा जब इकट्ठा करते हैं ना, तो ये हमें स्पिरिट वर्ल्ड की जो प्रैक्टिस ऐसे ही करवा रहे हैं, क्योंकि वहां ऊपर जाके भी यही होना है. सबने ऊपर जाके पाठ ही करते होना है उनके चरणों में. तो वो ये हमारी रिहर्सल चल रही है. Okay, वो कहते हैं never be unkind and try very hard not to be a hypocrite. You can achieve this if you want to, but the genuine desire should be there.
Now, since you are on earth, you have more scope to try to improve yourself. फायदा उठा लो अर्थ में आने का, इस दुनिया में आने का फायदा उठा लो. क्यों? वो बताएंगे. Once you come to the spirit world, you progress very slowly. So if you really want to improve yourself, do it now. Yes, now is most important. The power of now. वो पता क्यों कहते हैं फायदा उठा लो? क्योंकि जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना संगत जी, वहां पर जो वक्त है इतनी धीमी चाल चलता है, इंसान से लिया नहीं जाता. फिर वो क्या कहता है, वो पापों का इतना बोझ होता है. तभी तो आपने देखा है ना, सब एक सामान्य क्यों नहीं है. कोई किस तरह से शरीर लेके धारण होता है, किसी को कोई दुख आता है, किसी को कोई दुख आता है. अनजस्ट गॉड तो होते ही नहीं है. ये सिर्फ हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है. उस प्रकार से हम आते हैं ऊपर. इतना धीरे 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 धीमी गति से समय बीतता है. सपोज करो हमें लगे कि वो मुझे तो हजारों वर्ष ऊपर लगने हैं, तो ठीक है गॉड, गुरुजी, मैं इस जन्म में ये चीजें अपने ऊपर ले लेता हूँ, ताकि उस टाइम तो हम क्या के आए हैं ना, क्या के आए हैं ना. तभी तो वो शब्द में सुनते की कह के आए हैं कि कर्म ने तेरे. हम क्या के आते, ठीक है हम सच्चे सुच्चे रास्ते चलेंगे, पर यहाँ के हम फिर भूल जाते हैं. पर वो ही तो याद दिलाने गुरुजी आए कि रब कौन है. एक्चुअली हम सोचते ना कहाँ रब है, रब कैसा होता है. गुरुजी ने सब दिखा दिया. गॉड कैसा होता है. गॉड इज एवर लविंग. आपको कोई भी इतना प्यार, ऐसा प्यार दे ही नहीं सकता दुनिया में जो गुरुजी देने आए हैं. और गुरुजी ने दिखा दिया गॉड इज मर्सीफुल, तभी तो बख्श दिया. गुरुजी ने ये दिखा दिया गॉड इज फॉरगिविंग, माफ कर दिए हमारे कर्म. बहुत प्यार करते हैं. गुरुजी ने जो हमें स्पिरिचुअलिज्म की भी दात बख्शी, वो बड़े सहज तरीके से, कुछ रिचुअल्स करने के लिए नहीं कहा. जैसे गुरुजी आजकल महाशिव पुराण भी पढ़ा रहे हो, तो मतलब सहस्त्रों वर्ष उससे भी ऊपर पता नहीं क्या क्या तपस्या करनी पड़ती थी. एक वो ऋषि हुए हैं जब उन्होंने, क्योंकि हड्डियां मात्र रह गई, माता सती जी को भी शिव जी नहीं मिले जब तक उन्होंने घोर तपस्या नहीं की, क्योंकि तब शिव जी तब से ही प्रसन्न होते थे. पर शिव जी ने यह भी वरदान दिया, मैं कलयुग में अवतार लूंगा, मुझे सारे युगों में कलयुग प्यारा होगा, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, उनके साथ वास, उनके निकट वास करूंगा. तो वही तो गुरुजी कर रहे हैं. तो हमारे लिए कलयुग बहुत बड़ी दात बख्शी है गुरुजी ने. आज के जो भी गुरुजी ने हमें पढ़ाया है उस पे थोड़ा सा विल ब्रश अप टुमारो एज वेल. वो ड्रिल होना चाहिए माइंड में, क्योंकि इंसान को भूलना नहीं चाहिए किस कर्म के लिए आए हैं. अहंकार को त्याग देना चाहिए, सच्चे सुच्चे रास्ते चलना चाहिए, और किसी को भी पागल बना लो. अरे याद रखो, गुरुजी को आप पागल नहीं बना सकते, उनके साथ छल नहीं कर सकते, चालाकियां नहीं कर सकते. when गुरुजी यूज्ड टू स्माइल, उनके स्माइल के इतने मकसद इतने मतलब होते थे. सॉरी, एक स्माइल मैंने पता है बंदा कितने खड़ा की ठगियां चोरियां करदा पे अंदरों, किन्नू तुसी पागल बना रहे हो. You know, he doesn't feel happy by this behavior or by this karma, and by sugar coated talk. He likes genuine people. सच्चा सुच्चे बंदे गुरुजी को पसंद है, और उसमें फिर आपको दिखावा नहीं करना पड़ता. गुरुजी सबकी जानते हैं. तो जैसे समय हो गया है, बहुत 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 अच्छी सीख दी है गुरुजी ने. मुझे माफ कीजिए, बिकॉज एट द 11th hour my phone got conked off. So anyways, God bless his energies as well. They like to play around with me, but that's okay. इनकी भी अपनी दुनिया है, गुरुजी सब जानते हैं. So इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं. As long as reading में ना दखल है, I don't mind if they're sitting around, that's okay. और जो भी गलतियां हुई हैं मुझसे बोलने वक्त, मुझे माफ कीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिए. और शब्द बानी बोलते वक्त, क्योंकि वो बहुत उनका प्योर उच्चारण होता है, मेरे से शायद नहीं हो पाता, मुझे माफ कीजिए. तो कल फिर मिलेंगे. एकता शिल्पी जी से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करते हैं, जो इन्होंने महान प्लेटफॉर्म शुरू किया है और चुपचाप सेवा करते हैं, कभी आगे भी नहीं होते हैं. तो सीखने को मिलता है इनसे भी बहुत कुछ. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, ये पल देने के लिए. कल से हम फिर मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू.